Hello, today we will discuss the Wagner-Merwin rearrangement. This rearrangement comprises of a reaction in which the migration of carbon atom takes place with its electron. More specifically, reaction involves migration of carbon with its bonding pair, that is 1,2 shift takes place to an electron deficient carbon atom, especially in the neopentyl cation. Here I have shown you, this is neopentyl cation, in which this methyl group migrates with its electron pair to this positively charged carbon. So this is 1,2 shift and rearranged cation is formed. So all such type of reactions, all the reaction which gives rise to this ion, whatever may be the type of reaction in which if we got the pentyl cation, then this product will obtain. So all the reaction which gives rise to this ion products derived from the rearrangement ion. For example, these are the types from which we can obtain this type of cation. Number one is this hydrolysis of neopentyl bromide under SN1 conditions to give rearranged product instead of neopentyl alcohol. This is neopentyl bromide. Normally this bromide ion is substituted by OH to form this neopentyl alcohol in normal conditions, but due to this Wagner-Merwin rearrangement, these rearranged products are obtained in place of neopentyl alcohol. We obtain 2-methyl butane 2-ol, this one, and 2-methyl butane butene. So these two rearranged products are obtained in place of the normal neopentyl alcohol. Similarly, neopentyl alcohol on dehydration gives rearranged product. So either we obtain from neopentyl bromide or from alcohol with concentrated sulfuric acid, these rearranged alkenes are obtained. Now this rearrangement are first of all discovered in the bicyclic terpenes. So first of all, this was the case in which this arrangement observed. In this isoboronol, this is isoboronol. This is in presence of acid, it gives camphene. So this arrangement first of all I discovered in this example. Now we come to the mechanism of this reaction. Normal reactions, mechanism is illustrated by the example of, here we are illustrating by the example of dehydration of alcohol. The protonation, in this protonation of hydroxyl group of the alcohol followed by the loss of water molecule to give primary carbocation, and the primary carbocation then rearranged to relatively more stable tertiary carbon cation by 1,2 migration, 1,2 methyl shift before the product is formed. So the driving force is the rearrangement. Driving force of this rearrangement is the greater stability of tertiary carbocation. So this alcohol, by protonation of this, water molecule is eliminated from this carbon to form this carbocation. This is primary carbocation. So this methyl 1,2 methyl shift takes place to give here tertiary carbocation. So the driving force of this rearrangement is the more stability of this tertiary carbocation than this primary carbocations. Now the rearranged carbocation is then stabilize itself by loss of the beta hydrogen to form olefins.
Here this carbocation, this loses one proton to give these are rearranged alkenes. Now Zaitsev rule apply on this, whether which alkene is formed in more amount, which will be the major product or which will be the minor product, it will derive from the Zaitsev rule. So Zaitsev rule governs as to which of the two beta hydrogens will be eliminated from this, from either hydrogen eliminate from this carbon or these any of these two methyl groups. What will be the hydrogen H plus ion which remove depends governed by this Zaitsev rule. Now the rearrangement does not occur if the initially formed carbocation are stabilized by other factor, as here this rearrangement takes place due to the stability of this tertiary carbon cation than this primary carbocation. If by some method of this primary carbocation is stabilized, then this shift does not takes place. So here we discuss the rearrangement does not occur if the initially formed carbocation can stabilize by other factor, as in 3,3 dimethyl 2-bromobutane undergoes SN1 hydrolysis with rearrangement. Here this is 3,3 dimethyl 2-bromobutane, this on SN1 condition, this from there. Now this rearrangement takes place. So here we got rearranged product. So in this case, when all the methyl groups are their methyl group is present, then this rearrangement takes place and we got their rearranged products. But in play, if this methyl group is replaced by phenyl group, so while its phenyl analog, इसी का जो फिनाइल एनालॉग है, इसमें जो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना, इस केस में दिस विल बी स्टेबलाइज्ड विद दिस फिनाइल रिंग. So no rearrangement will take place here because this benzylic cation is stabilized. So no rearrangement will take place. So the benzylic cation is stabilized by phenyl group through delocalization of rearrangement. So rearrangement does not takes place. So in case when this primary carbocation is not stabilized, it rearrange into the tertiary carbocation here. But if this primary cation, in this case when phenyl ring is present, so it is stabilized by this, so no rearrangement takes place and the product will obtain from this primary cation itself. Now the another way by which this rearrangement do not takes place or may takes place is it depend upon the stability. For example, in the alicyclic systems, the relief of strain means the relaxation in the strain can provide a powerful driving force for the rearrangement. For example, the addition of hydrogen chloride in alpha pinene to give isobornyl chloride. Isobornyl chloride is formed in this rearrangement. The addition of hydrogen chloride to alpha pinene, the rearranged product is formed because the strained 4-membered ring, here this intermediate, this carbocation is formed in this ring is 4-membered and this is rearranged to the 5-membered ring. So because the strain in 5-membered ring is less than this 4-membered ring, so this methylene shift takes place, the migration of the methylene group takes place in this. Here यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है और रिंग एक्सपेंशन के बाद ये 5-membered रिंग में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, फिर भी ये लेस स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन से, बिकॉज द डिक्रीज इन the strain of the ring. The relief of the strain is the major or the dominating force here for the rearrangement.
सो रीअरेंजमेंट का यहाँ पे जो फैक्टर है, इफेक्टिव फैक्टर, वो है रिलीफ ऑफ द स्ट्रेन। यहाँ पे वो सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो फैक्टर नहीं करती है। नाउ सो माइग्रेशन और 1,2 शिफ्ट जो है मिथिलीन ग्रुप की वो होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन या टर्शरी कार्बोकैटायन, whichever is from in this, whether it is stabilized or not, as we have seen in the case of the phenyl ring। फिनाइल की केस में हमने देखा कि प्राइमरी कार्बोकैटायन ही स्टेबल था, इसलिए उसी से प्रोडक्ट मिल गया। और यहाँ पे एलिसाइक्लिक सिस्टम्स में हमने देखा कि टर्शरी कार्बोकैटायन हालांकि ज़्यादा स्टेबल है, फिर भी स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन कम करने के लिए 4 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हुआ और टर्शरी कार्बोकैटायन से सेकेंडरी में कन्वर्ट होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिला। अब हम इस रिएक्शन के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है इसके बारे में, है ना, इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रिएक्शंस आर, नंबर 1, द कार्बोकैटायन कैन ऑब्टेन फ्रॉम नंबर ऑफ वेज। कई तरीके से हमें ये कार्बोकैटायन मिल सकते हैं। नंबर 1, from halide by strongly ionizing solvent, Lewis acid such as silver ion, which abstract the halide ion from the carbocation। This ये अल्काइल हैलाइड है, सिल्वर आयन की प्रेजेंस में ये कार्बोकैटायन हमें मिलता है। इसका एग्जाम्पल हमने ये देखा, आइडोसाइक्लोहेक्सेन है, आइडोसाइक्लोहेक्सेन सिल्वर नाइट्रेट से है, नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, और इसमें रीअरेंज प्रोडक्ट हमें ये मिला साइक्लोपेंटाइल नाइट्रोमीथेन। दूसरा तरीका जिससे हमें ये कार्बोकैटायन मिल सकता है वो अल्कोहल से। हमने आगे भी देखा कि अल्कोहल से एसिड की प्रेजेंस में ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा और हमें ये कार्बोकैटायन मिलेगा। तीसरा तरीका है फ्रॉम एमीन्स, एमीन से हमें मिल सकता है। अमीन से प्राइमरी अमीन हम जानते हैं, प्राइमरी अमीन नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में बाय नाइट्रस एसिड रिएक्शन अकर बाय डाइजोनियम आयन फॉर्मेशन फॉलोड बाय द लॉस ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में डाइजोनियम सॉल्ट बना और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लूज करके हमें कार्बोकैटायन मिल गया। जो 3 तरीके तो ये हुए कि हैलाइड से या अल्कोहल से या अमीन से हम कार्बोकैटायन प्राप्त कर सकते हैं या हमें मिल जाता है। ये एक एग्जाम्पल है अमीन से कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का, है ना। साइक्लो प्रोपाइल कार्बिनाइल अमीन है, इसका डाइजेटाइजेशन से साइक्लोप्रोपाइल कार्बिनोल और ये रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट इससे मिलता है। चौथा तरीका है कार्बोकैटायन ऑब्टेन करने का, वो एल्कीन से, एल्कीन का प्रोटोनेशन से अभी हमें कार्बोकैटायन मिल सकता है। तो एक फीचर तो ये है इसका कि कार्बोकैटायन नंबर ऑफ वेज से हमें 4 तरीके से कार्बोकैटायन मिल सकता है। दूसरा है एक तो अभी तक जो हमने एग्जाम्पल पढ़े उन सब में मिथिलीन ग्रुप का 1,2 शिफ्ट हो रहा था, है ना। अब हाइड्रोजन कैन ऑल्सो माइग्रेट इन दीज सिस्टम्स, हाइड्रोजन भी माइग्रेट कर सकता है। सो ड्यू टू हाइड्राइड आयन माइग्रेशन reaction which occurs through the isobutyl cation yield mainly product derived from the tertiary butyl cation। so ये यहाँ पे isobutyl cation है, इसमें जो हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन का माइग्रेशन से हमें टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन मिलेगा और रिएक्शन जो है वो इस जो प्रोडक्ट है वो इसकी वजह से हमें मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल देखें हम। सो द रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स विद नाइट्रस एसिड, ये एक प्राइमरी एलिफेटिक अमीन हम देख रहे हैं, नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में ये डाइजोनियम सॉल्ट बना और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इसमें से इवॉल्व होकर प्राइमरी कार्बोकैटायन हमें मिल रहा है। इस प्राइमरी कार्बोकैटायन में H+ हाइड्रेट शिप्स के से ये हमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिला और ये सेकेंडरी से फिर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट इसके हिसाब से यहाँ पे मिलेगा, या एलिमिनेशन हो जाएगा या H+ और इसके साथ OH जुड़ जाएगा ना। दूसरा जो है जिसमें रिएक्शन जिसमें कि ये
हाइड्राइड आयन माइग्रेशन का, द रिएक्शन ऑफ द एल्काइल हैलाइड विद लुईस एसिड। ये एल्काइल हैलाइड है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये हाइड्राइड आयन माइग्रेट करेगा, और इस तरीके से हमें ये हाइड्राइड आयन माइग्रेशन के एग्जाम्पल है। तो मिथिलीन ग्रुप के अलावा हाइड्राइड आयन भी माइग्रेट इसमें कर सकता है। तीसरा इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रिएक्शन इज द कि इसमें जो एराइल ग्रुप है माइग्रेशन, हमने देखा माइग्रेशन मिथाइल ग्रुप का, माइग्रेशन हाइड्राइड आयन और एराइल ग्रुप भी माइग्रेट करता है, और माइग्रेशन एप्टीट्यूड जो एराइल ग्रुप का है वो सबसे ज़्यादा है। सो एराइल ग्रुप हैव ग्रेटर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड देन एल्काइल और द हाइड्रोजन और एल्काइल से ज़्यादा एराइल ग्रुप माइग्रेट करता है। ये आगे एग्जाम्पल आ रहा है, उसमें हम देखेंगे। द एराइल ग्रुप माइग्रेट्स faster than alkyl group. So why this? Because the electron releasing group in alkyl, अच्छा alkyl group में भी जैसे फिनाइल रिंग है उसके अंदर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, so the electron releasing group in aryl group will increase the rate of the migration while the electron withdrawing group will decrease the migration. विनाइल रिंग के अंदर भी अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और बढ़ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड घट जाएगा। जैसे हम नीचे के एग्जाम्पल में देखेंगे, द एलिमिनेशन इन द एग्जाम्पल बिलो इज 1000 टाइम फास्टर देन द नियोपेंटाइल क्लोराइड। नीचे हम फिनाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल आपको देखेंगे अभी अगले पेज पे, जिसमें जो माइग्रेशन है वो नियोपेंटाइल क्लोराइड के जो इसका कंपेरेटिव जो कंपाउंड है उसके कंपैरिजन में इसमें 1000 टाइम फास्टर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर दिस इज बिकॉज द रीअरेंजमेंट ऑफ फिनोनियम आयन इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। रीअरेंज फिनोनियम आयन इज, ये इसमें फिनोनियम आयन बनता है फिनाइल ग्रुप की वजह से, तो वो ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू द डिलोकेलाइजेशन देन द रीअरेंज कार्बोकैटायन फ्रॉम द नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल क्लोराइड में जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके कंपैरिजन में फिनोनियम आयन जो इसके अंदर बनता है वो मोर स्टेबल होता है। कार्बोकैटायन जो उसमें बनेगा नियोपेंटाइल क्लोराइड से वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा एनर्जी की वजह से ये हाई एनर्जी, ड्यू टू दिस हाई एनर्जी इट इज़ लेस स्टेबल, है ना। दिस इज बिकॉज द रीअरेंज फिनोनियम आयन इज रिलेटिवली मोर स्टेबल ड्यू टू द डिलोकेलाइजेशन देन द रीअरेंज कार्बोकैटायन फ्रॉम द नियोपेंटाइल क्लोराइड। व्हाई दिस इज ascribed to the fact that whereas the rate determining step in the reaction of neopentyl chloride is the formation of high energy or less stable primary carbocation, that in the reaction of the phenyl substituted chloride is the formation of the low energy bridged phenonium ion. तो फिनाइल वाले केस में फिनोनियम आयन जो बनता है वो ब्रिज्ड का बनता है और वो बहुत स्टेबल है, और उसके केस में नियोपेंटाइल क्लोराइड के केस में प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है जो लेस स्टेबल है, तो क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये इसमें ये फिनोनियम आयन, इस एग्जाम्पल जिसमें फिनाइल रिंग नियोपेंटाइल की जगह यहाँ मिथाइल होता तो नियोपेंटाइल हो जाता, और इसमें फिनाइल रिंग की वजह से ये फिनोनियम आयन बनता है। अब फिनोनियम आयन में ये जो फिनोनियम आयन है ये दिस डिलोकेलाइजेशन की वजह से ये मोर स्टेबल हो जाता है, और ये नियोपेंटाइल यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता तो नियोपेंटाइल केस में ये प्राइमरी कैटायन बनता, वो लेस स्टेबल होता है। तो ये फिनोनियम आयन बनने की वजह से ये मोर स्टेबल हो जाता है, इस वजह से इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। सो इसको कहते हैं द एराइल ग्रुप इज सेट टू प्रोवाइड एंचीमेरिक असिस्टेंट टू द रिएक्शन। इसको एंचीमेरिक असिस्टेंट द रिएक्शन कहते हैं। नाउ फर्दर, as the structure of the phenonium ion is similar to the intermediate in the electrophilic aromatic substitution, and therefore the electron releasing group in aromatic ring gives rise to the greater rate migration
and electron withdrawing group, for example the chloro or halogen Ni is lower the rate। जो हमने अभी पहले बात करी कि फिनाइल रिंग के अंदर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो इस माइग्रेशन को बढ़ा देता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देंगे जैसे हेलोजन वगैरह तो इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम हो जाता है। ये क्यों है? क्योंकि ये फिनोनियम आयन जो है इसका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो इंटरमीडिएट बनता है उसके जैसा स्ट्रक्चर इसका है। इसकी वजह से इसमें वही फैक्टर काम करते हैं। अगर फिनाइल रिंग पे कोई ग्रुप है तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम कर देता है। अगला जो फीचर है इसका वो ये कि जो रीअरेंजमेंट है ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक कैसे है कि SN2 रिएक्शन की तरह है। लाइक SN2 रिएक्शन द माइग्रेटिंग group approaches to the electron deficient carbon atom from the opposite direction to that in which the departing group is moving। जो निकलने वाला ग्रुप है तो SN2 जैसे SN2 मैकेनिज्म में होता है ना बैक साइड अटैक, उसी की तरह इसमें जो माइग्रेटरी जो ग्रुप है वो कार्बोकैटायन पे उस कार्बन पे जिस पे चार्ज है उस पे अपोजिट डायरेक्शन से आता है लीविंग ग्रुप के वहां से। सो अब इसकी वजह से जब ऐसा होगा तो हमेशा इन्वर्जन होता है। सो द इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन देयरफॉर अकर्स एट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। तो हमेशा इन्वर्जन उस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन में उस पर हमेशा इन्वर्जन होगा जैसे SN2 मैकेनिज्म में होता है। दिस स्टीरियोस्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एलिसाइक्लिक केमिस्ट्री। इसके बहुत इंटरेस्टिंग यूजेस हैं एलिसाइक्लिक केमिस्ट्री में है। फॉर एग्जांपल इन द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेनॉल। ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल के डिहाइड्रेशन की बात करें सो ओनली ये जो इसका जो आइसोमर है ओनली दैट कन्फर्मेशनल आइसोमर gives the reaction in which the hydrogen atom is anti to the axial hydroxyl group। अब इसमें केवल ये वाला आइसोमर काम ये वाला रिएक्शन देता है जिसमें ये माइग्रेशन ये हाइड्रोजन जो इसके ये एक्सियल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके इसके उस वाले आइसोमर में जिसमें ये हाइड्रोजन एंटी है केवल ये वाला आइसोमर ही ये वाला रिएक्शन देता है ना। जिसमें ये एंटी नहीं है वो वाला ये रिएक्शन वो आइसोमर ये रिएक्शन नहीं देगा। तो स्टीरियो स्पेसिफिक है। हमेशा जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो लीविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन ये बात केवल तब तक ही है जब तक इस रिंग में ये जो रिंग है वो रिजिड नहीं है। अगर इस तरीके की रिंग हो गई जहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ने जिसमें रिजिडिटी है जिसमें फ्लिप और ये रेजोनेटिंग कन्फर्मेशन नहीं बनेंगे उस केस में इस तरीके की बात लागू होती है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। हाउएवर इन द ट्रांसडेकालिन का एग्जाम्पल दें, ट्रांसडेकालिन का डेरिवेटिव इन विच द ये सिस्टम ये रिजिड है बिकॉज ये पीछे से इससे अटैच्ड है तो यहाँ पे इसमें फ्लिप नहीं होगा। यहाँ लिखा है विच आर रिजिड बिकॉज रिंग कैन नॉट फ्लैप। सो व्हेन नो हाइड्रोजन, अब इस केस में अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है, व्हेन नो हाइड्रोजन एंटी टू द OH ग्रुप इज प्रेजेंट द रिंग कार्बन एटम प्रेजेंट इन द अपोजिट एंटी पोजीशन माइग्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड रिजल्टिंग टू द रिंग कंट्रैक्शन। तो इस केस में चूंकि अब यहाँ देखें हम ये जो हाइड्रोजन इसके एंटी नहीं है तो ये हाइड्रोजन तो माइग्रेट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये इस हाइड्रोजन के माइग्रेशन की बजाय यहाँ से ये रिंग का मिथिलीन ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करता है। माइग्रेट करने की वजह से ये जो रिंग जो है 6 मेंबर रिंग की जगह ये 5 मेंबर रिंग बन जाती है। तो रिंग कंट्रैक्शन हो जाता है। रिंग कंट्रैक्शन क्यों हुआ, ये जो हम बात कर रहे थे कि इसमें इसके बहुत इंटरेस्टिंग यूजेस हैं कि एलिसाइक्लिक सिस्टम्स में कि इसमें हमेशा ये स्टीरियो स्पेसिफिक है कि माइग्रेटरी ग्रुप हमेशा एंटी लिविंग ग्रुप के एंटी डायरेक्शन में होगा। जैसे इस केस में हाइड्रोजन नहीं है तो ये मिथिलीन ग्रुप माइग्रेट कर गया और इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि रिंग कंट्रैक्शन हुआ। तो हमें प्रोडक्ट जो है वो रिंग कंट्रैक्शन की वजह से मिलेगा। इसके और दूसरे जो फीचर्स हैं
वो है कि दिस रीअरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बाइसाइक्लिक सिस्टम्स में बहुत होता है. नंबर 6 इज द 2 और मोर रीअरेंजमेंट में अकर सक्सेसिवली. ये जरूरी नहीं है कि एक माइग्रेशन हो, दो से ज़्यादा. जैसे टर्पीन्स वगैरह में, स्टेरॉइड्स में हम पढ़ेंगे, स्टेरॉइड वगैरह में एक ही रिंग में एक साथ पाँच शिफ्ट जो है वो एक साथ होती हैं. सो दिस रीअरेंजमेंट हैज़ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन यूजुअली इन स्टेरॉइड एंड टर्पीन केमिस्ट्री. टर्पीन और स्टेरॉइड में इसके यूजेस काफ़ी होते हैं. So this was all about Wagner-Merwin rearrangement. Thank you.